लाइफ की हर छोटी छोटी चीजों से कहानियां जुड़ी हुई हैं, कुछ खट्टी, कुछ मीठी और कुछ बहुत ही टेस्टी। तो अगर आज आप ऐसे ही एक सोलफुल और फ्लेवरफुल सफर पे चलने के लिए तैयार हैं तो चलते हैं फिर। सर ये बुरास का पेड़ है। हाँ जी। और इसी के फूलों से जूस बनाया जाता है, जो भी हमने पिया। हाँ सर। और इसका सीजन कब से कब तक रहता है? इसका सीज़न सर मार्च से स्टार्ट रहता है, अप्रैल 1 तक पूरी पतझड़ खुल जाता है। हाँ सर। लेकिन यार ये सब बहुत ऊपर ऊपर लगे, तो अभी ऊपर चढ़ के तोड़ना पड़ेगा। आप चढ़ पाओगे? हाँ सर, चढ़ जाऊँगा। ठीक है, चलो मैं फिर आपका असिस्टेंट का काम करता हूँ। मैं नीचे से, आप फेंकना और मैं कैच करता हूँ। ठीक है सर। ठीक है, चलिए। बुरांश इकट्ठा करने के बाद अजीत और मैं इसे लेके गए इस गांव के एक छोटे से आउटलेट में, जहां बुरांश और दूसरे फलों से जूसेस, जैम्स और चटनीज बनाई जाती हैं। जैसे ये बुरांश जंगलों से लाया गया, तो इसको तुड़ाई करने के बाद इसका पूरा इस तरह से निकाल दिया जाता है। इसके जो पुंकेसर है, ये वाला पार्ट फेंक दिया जाता है। और जो ये होता है, इसको धुलाई के बाद पानी में उबाल लिया जाता है। और पानी में उबालने के बाद उसकी छनाई होती है। और फिर उसको अलग करने के बाद जो रस होता है, उसमें यदि हम शुगर ऐड करना चाहते हैं तो लिक्विड भी लोग पसंद करते हैं, उस तरह से भी देते हैं। और जो शुगर वाला करते हैं तो उसमें शुगर डाल दी जाती है। और जो स्टीविया ऐड करके कहते हैं, मिठास की जगह स्टीविया कर दिया जाता है। हम जैसे बुरांश का स्क्वैश बनाते हैं, और बुरांश जैम, और बुरांश की चटनी, और ड्राई बुरांश भी रखते हैं। I'm so happy to see that despite being such a small business, this venture is not only making unique products but also setting an exemplary benchmark in women empowerment and rural employment. अब बुरांश का जूस तो पी लिया, but I'm sure you would be wondering that where exactly am I? Around 360 kilometers from Delhi and 50 kilometers ahead of Nainital, I am at a place called Nathua Khan. Lying in the Ramgarh-Mukteshwar belt, this is also known as the fruit bowl of Uttarakhand. अब दिल्ली की बढ़ती गर्मी को देख, I was looking for a place to escape the heat and truly relax in nature. And my search ended at Homfortable, a brainchild of two business professionals who came together to turn heritage homes into sustainable and luxurious stays. We have always been avid travelers. When we were traveling across Himachal, trying to look for a place that was comfortable, clean, घर जैसा खाना था पर घर का खाना नहीं, being taken care of की feeling आए, वो चीज़ नहीं मिल रही थी। You know, this is something that a lot of people must be looking for sure. It's just that it's not there out there in the market. Most of the people either are focusing on hotels or just building a cottage and calling it a homestay. So I still remember we were sitting in our home office and we said that okay, it was I think 10 o'clock in the morning, and we said we have to come up with a name that speaks and resonates with the concept that we have in mind. Throughout the time when we were thinking about this, the only thing that was going in our mind was homely and comfortable. And सारा दिन बोलते I think we would have spent about 7-8 hours already. Home comfortable. Between the two of us, it became Chinese whispers and it became Homfortable.
If you are coming here for the views, you would not be disappointed. Built on a tabletop, the place has got 360 degrees views with valley on one side and snow-capped Himalayas on the other. And right from the first look, it is evident that the place is seeped in Kumaoni culture, especially the heritage cottage, which is thoughtfully restored in true Kumaoni architecture style. Made of natural and upcycled materials, the home is like a rustic forest retreat. It's luxurious yet rooted in nature. बहुत बाथरूम्स देखे, ये हैंड्स डाउन नेक्स्ट लेवल। द बेस्ट पार्ट इज कि वो बोलते हैं कि उन्होंने हर चीज रस्टिक रखी है, हर चीज लोकल आर्किटेक्चर के हिसाब से रखी है, बट यहाँ एक्चुअली दिख रहा है। ऑल यू सी इज, जैसे कि ये लकड़ी देखो, ये यहीं की लॉग रिसाइकल की है। बाल्टियां वहां पे मेरे को बहुत ही सही लग रही है, स्टील की, लोटा भी स्टील का, एवरी योर शैम्पू कंडीशनर बॉटल्स दे आर रीफिलेबल। सो इस बाथरूम में मजा आने वाला है। थोड़ा रेस्ट करने के बाद द स्टाफ इनवाइटेड मी टू वन ऑफ देयर फ्रेंड्स प्लेस। एक्चुअली उन्हीं के एक फेलो स्टाफ मेंबर के फादर की बरसी थी और उन्होंने पूरे गांव को लंच पे बुलाया था। I was a bit hesitant at first, but at the same time it was also an opportunity to get a glimpse of the local lifestyle and culture. The best thing which I noticed about this place is that it is far away from the cacophony of the city and the vibe here is pure zen. Plus, with such hypnotizing views, this is a paradise for all those looking to cut off from the hectic urban life. प्याज टमाटर की सब्जी है, ओके, एंड ये भांग की चटनी, ठीक, एंड दाल पराठा कुमाऊं।
Kumaoni influence at Comfortable doesn't end at the architecture and the interiors. The food in their Pahadi kitchen is prepared using locally sourced fresh ingredients. और आज भी एक ऐसी चीज की सब्जी बनने वाली है जो पहाड़ों में चुभी तो बहुत बार है, बट कभी उसे पकते हुए नहीं देखा। बिच्छू घास रहती है। हाँ। इसमें पुराने रहते हैं तो पुरानी उम्र में टेस्ट नहीं आता है। ये बिच्छू एक बार कट चुकी है, अभी के टाइम में फिर उगती है। हाँ। तो उगने के बाद इसका जो नॉर्म एकदम सॉफ्ट रहता है, इतना पहले से हार्ड नहीं रहता है। अच्छा। ये आसानी से पक सकता है, आसानी से पिस सकता है। ठीक। इसलिए ये वाला पार्ट हम तो एकदम बेसिकली ताजे ताजे पत्ते ताजे हाँ, जो ताजे आजकल निकल रही है, ठीक। तो ये इन चीज़ों को हम लेते हैं। बचपन में लगती थी आपको? सर बहुत क्योंकि ये बिच्छू घास, क्योंकि मैं झगड़ा भी करता था, शैतानी बहुत करता था बचपन में। मम्मी ने बहुत लगाई है मेरे को सबसे ज़्यादा मम्मी ने लगाई रखी। और प्लस सर इसमें क्या है, बिच्छू सब्जी जो है ये बहुत लाभदायक है शरीर के लिए। अच्छा। जैसे कभी क्या रहते हैं हम लोग सोते वक्त पिलो को भी वो रख देते हैं, तकिया रख देते हैं, तो तकिया रखने के बाद हमारी गर्दन ऊपर नीचे हो जाती है, तो दर्द करती है मॉर्निंग में उठने में, तो हल्की सूजन आती है, नस सूज जाती है, तो उसमें काम आता है। उसमें क्या करते हैं, पहले शहद लगाया, शहद लगाने के बाद इसको लगाते हैं ऐसे, इसका कांटा के साथ? हाँ, ऐसे पकड़ेंगे हाँ। तो ऐसे मारेंगे। अच्छा। तो पूरा लगता है। हाँ। तो जो हमारा खून होता है वो खुल जाता है, जो रुका रहता है, नसें वो रहती है खुल जाती है। कभी भी हम चलते हैं ऐसे यहाँ पर चल रहे हैं, खुदा न खास्ता हमारा पाँव ऐसे मुड़ गया, सूज जाता है पूरा। सूजने के बाद तो पहले शहद लगाया, क्योंकि एकदम सूजा जा रहा है, तो उसके शहद लगाने के बाद फिर इसका वो करते हैं, इसको इतना लगाते हैं तो पूरा नसें खुल जाती हैं, जो पूरा सही हो जाता है, दर्द पूरा भाग जाता है। बट आज आप मेरे को लगाने तो नहीं वाले ना? नहीं, आज तो मैं खिलाऊंगा। बहुत आसान है कि हम दिल्ली गुड़गांव से या कोई और अर्बन स्पेस से लोगों को वेल ट्रेंड स्टाफ ले आएँ, टीम ले आएँ और उनको यहाँ पे एम्प्लॉय कर लें, बट it goes in towards building a two-way relationship when you give that employment to the people from the rural community. ये जगह इनकी है, this place belong to these guys, the locals. उनकी जगह पर आकर आप उन्हीं को ही नहीं बाहर कर सकते हो. In fact, some of them have migrated back from cities they were working on. If you see our chef, he was working with Taj Mumbai. Ajit, who is our experience manager, has worked with boutique stays across Kumaon region. And the way we treat our team and the community, they started accepting us and they felt really comfortable around with us. जैसे पानी में उबलेगा हाँ। तो ये जो कांटे ऑटोमेटिक टूट जाते हैं। आप शेफ कैसे बने? हम दो भाई हैं, तो घर पे सिस्टर नहीं है, और काफ़ी जैसे रहते हैं कि किसी की सिस्टर रहती है तो वो बना लेते हैं। हर काम जो रहते हैं सिस्टर ही करती हैं यहाँ पे। तो भाई कामचोर होते हैं तो भाई नहीं करता है, सबसे बड़ी चीज़ है भाई नहीं करता वो काम। तो मैंने घर पे सब्जी से लेके जो भी है मैंने हर काम किया है बचपन से ही। मैंने बचपन से घर से ही सीखा। अच्छा। कभी मम्मी खेतों में चले गई, बेटा तो ये बना देना, सब्जी बना तो कैसी भी बना लेकिन बना ले, तो मैं बना लेता था। तो मम्मी लोग भी खुश, उनको हेल्प भी मिल जाती थी। अब क्योंकि सिस्टर है नहीं, अब बोल दें कि अभी सिस्टर होना ज़रूरी है, सबसे बड़ी चीज़ है सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि भाई को तो बहुत वो मिलती है, हेल्प मिलती है। अब वो चीज़ हमें हेल्प नहीं मिली। लेकिन देखो इसका एक पॉजिटिव चीज़ ये भी हुई ना कि आपकी नज़र में फीमेल्स की, लड़कियों की, सिस्टर्स की एक कद्र बढ़ गई। ऐसा नहीं है कि सिर्फ काम उन्हीं का जिम्मा है। हाँ, लेकिन मेरे को तो मम्मी मेरे से लड़की की तरफ मेरे को नहीं बोलते। कोई भी गेस्ट आया है मम्मी यही बोल देती कि ये मेरी लड़की है, बोला। लड़का कभी नहीं बोला मेरे को। अभी भी मैं घर जाता हूँ, जब भी मैं खाना बनाता हूँ तो पूरा इधर उधर की सुनता भी नहीं, तो अपने मन से अपने पूरा फोकस इस खाने में, अंदर से फीलिंग लगती है कि हाँ मैं कुछ करूँ और कुछ नहीं करूँ, मैं वो चीज़ रहती है दिल से। जितना सर आप जितने प्यार से खाना बनाएंगे, जितने प्यार से, जितने पूरा मन उसमें लगाएंगे, तो खाना उतना टेस्ट रहता है। अब सब्जी तो बन गई, बट पता चला कि इतनी आसानी से मुझे नहीं मिलने वाली, बिकॉज नवनीत एंड टीम डिसाइडेड टू टेक मी टू अ पिकनिक ऑन टॉप ऑफ द हिल बिहाइंड द होम। और देखने में ये छोटा सा दिखने वाला ट्रैक इज एक्चुअली नॉट दैट इजी पीजी,
बट अब क्या करें, खाना और व्यूज दो ऐसी चीजें हैं जिनके लिए तो आई एम रेडी टू गो टू एनी एक्सटेंट. ये हमारा बहुत पुराना मंदिर है जिसको हम दादाजी के नाम से जानते हैं. अच्छा. कभी भी हमारे गांव में किसी लोग के ऊपर अगर कोई कष्ट आता है, कोई आपदा आती है, तो इनको पुकारते हैं. और इस मंदिर का नाम भी है क्या कुछ? हाँ, भूमिया देवता. भूमिया देवता. जी जी जी. अच्छा. और वैसे भूमिया देवता, वैसे बुबजू. बुबजू मतलब वही हुआ. अच्छा. तो बूबू वैसे यहाँ जो पहाड़ी में बोलते हैं हम लोग बूबू कहते हैं, बूबू. वैसे दादा हुए. अच्छा, इसीलिए. तो हमारे पापा की ये लगभग 90 ईयर में एक्सपायर हुए हो. तो उन्होंने अपने उसमें बताया कि ये कम से कम हमसे 50 साल पहले से यहाँ पे मंदिर है. तो लगा लो आराम से 150 साल. 150 साल. जी जी जी. बहुत ही डिफरेंट लगता है यार इवनिंग में. एंड आई मीन इट हैज़ इट्स ओन चार्म. आई थिंक एवरी टाइम, एनी टाइम ऑफ द डे. Yeah. सुबह हम पहुंचे अलग. आई एम श्योर अर्ली मॉर्निंग्स वुड बी मैजिकल एज वेल, बट शाम को तो विद ऑल द मूड लाइटिंग आपने एकदम मूड ही सेट कर दिया. We had to match up to the vibe that is there naturally all around. True. And I could totally see this. Yeah, and this is in fact the favorite part of the day for all our guests. They always look forward to the finger food evening, to the barbecue. They'll be inquiring from morning, what is it in the menu for the finger food evening, what's there for barbecue. So they totally enjoy this part of the evening. I can so see that. One of the very reason why we decided to go with this long table setup is to create a camaraderie between people who have never met each other in the past. So that is the kind of vibe we wanted to create, that they come up here, they meet like-minded people and they feel that community living, and as if, you know, they go back having made new friends. True. And I remember when we walked in for the first time here, the sky was like a palette of colors. Wow. And I could hear the silence, and all that was speaking to me were the views. Wow. It was that gorgeous. It was that gorgeous. And the fact that it is constructed, all the structures are using natural materials, it's a treat to the eyes. अगर यहाँ पे there was cement structures using cement or unnatural, non-natural materials or artificial materials, then probably the beauty would not have eyesore been. रहता ही है, Yeah. no doubt. So yeah. Couple of things
struck me, you know, when I came here. One was the 360-degree view that you get. You know, turn your head around, you'll see, you'll get a view. True. Comfortable is all about setting up experiences and creating unique experiences. So, you know, what we thought of is that this place is going to speak to the experiences that we want to create. It's going to have a vibe and character of its own. When guests are here and they light up the mood, and when we see them, you know, with smiles on their face, they're happy, enjoying, you know, that's when we get that satisfaction, and then we, you know, we say to each other, actually we've done it. Wow. We were right. Wow. And then it feels surreal. What has been achieved is purely because of the hard work and dedication of the team as well. I mean, they have been, they are the pillars, they are really the pillars of this operation, this entire project, this entire venture, and they are heart and soul deep into it. So it's really not a hotel, not a resort, not a homestay, it's just Homfortable, which is enabling experiences, as we say, as our tagline, because no two experiences are alike.